Namaskar, welcome to the Kalpurush Astrology YouTube channel. I am Dr. Sagar Nyogi. Last few days we are discussing about medical astrology, and today our topic is where is your sublord. आप जानते हैं कि कृष्णमूर्ति पद्धति में सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड का रोग के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि अगर सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड या सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड अगर जिस भाव में बैठा है, ये दो प्लैनेट या एक प्लैनेट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, जहां पर ये बैठा है उस राशि से हमको बहुत कुछ पता चलता है कि इंसान क्या क्या डिजीज इंसान को होगा, इंसान को किस तरह का रोग होगा और वो रोग कितना दिन में ठीक होगा। मैं और एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि अगर सिक्स कस्पल सबलॉर्ड के साथ लगन लॉर्ड का संबंध है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है वो सारा जीवन वो डिजीज्ड ही रहेगा। अगर सिक्स कस्पल सबलॉर्ड 8th या 12th हाउस में उसका कोई कनेक्शन होता है, कृष्णमूर्ति पद्धति में जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेटर, अगर वो 8th और 12th हाउस के भी सिग्निफिकेटर है तो डिजीज क्रॉनिक होगा और व्यक्ति जो है बहुत दिन हॉस्पिटलाइज्ड रह सकता है। अब सवाल ये है कि तो ये कैसे जाने। देखिए, ये तो एक बहुत गहरा साइंस है। ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दे तुम्हारा राशि क्या है तो तुमको ये डिजीज होगा। दैट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी. Astrology is a complete science and you have to predict very minutely. You have to go to the root level so that you can understand and you can predict properly and you can guide a person with some good advice. Because जिनमें से आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, मैं उनको ये बार बार कहता हूँ कि ऐसे एस्ट्रोलॉजी मत सीखिए कि किसी इंसान को हम डरा दें। प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। ऋषियों का जो थ्योरी है, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये बहुत गहरा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि विनम्रता से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेडिक्शन करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिए। चलिए चार्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इंसान को एक्चुअल में क्या क्या डिजीज कैसे हम बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति पद्धति। आज उसी का चर्चा हम कर रहे हैं सिक्स कस्पल सबलॉर्ड का। नाउ लुक एट दिस चार्ट। सिक्स कस्पल सबलॉर्ड इन दिस चार्ट यू कैन सी इज जुपिटर. सिक्स कस्पल सबलॉर्ड इज जुपिटर एंड द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ सिक्स कस्पल सबलॉर्ड इज मार्स. Jupiter is posited in the 3rd bhava and in the Rashi of Virgo. Mars is posited in the 7th bhava, the Rashi of Capricorn. Now, these two fellow, Jupiter and Mars, actually what they signify, and these two Rashis or these two bhavas, what they signify. Let's see my slides in the advanced level of astrology. Now look at the chart. 7th house is the house of lower abdomen and kidney, and Jupiter is the planet which signifies muscular, boneless and twistable organs. Have you seen it? Muscular, boneless and twistable organs. So from that point we can easily predict that the native will suffer from abdomen, an organ in the abdomen
which is boneless and which might have some connection with kidney. Yes, my dear friends, this lady is suffering from renal failure and going through several times she has gone through dialysis. So this is the indication of sixth Kaspal sublord and its nakshatra lord. Now look at this chart. This person's sixth Kaspal sublord is Moon, and Moon is in the nakshatra of Ketu, right? So Moon, sixth Kaspal sublord, posited in the 8th house conjunct with Mars, and Ketu posited in the 4th house. Ketu is in Cancer and Moon is in Scorpio. So the disease indicates by these that the native will suffer some diseases related to his 4th house, that is chest region, and 8th house, that is 8th bhava, that is his private parts. Also Mars is conjunct with Moon, so Mars will also have an effect, and Mars indicating in this chart, Mars indicating 8th house, 9th house, 1st, 11th and 12th house. So it could be easily said that the 6th Kaspal sublord has direct link up with the 12th house. So the native will remain ill for a long time and will have to be hospitalized several times in his life. It can be predicted, and mainly the organs that will be affected are the organs of Cancer sign and organs of Scorpio sign, right? उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा। फ्री मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स है वो अभी तक खुला है, फ्री अभी तक चल रहा है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एक बार ज्वाइन करके फ्री में देख सकते हैं कि एक्चुअल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम कितने गहराई से जाके विचार करेंगे, तब जाके कोई प्रेडिक्शन करेंगे। मैं सबको आह्वान करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आइए इस कोर्स में ज्वाइन कीजिए, और फ्री में, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। मिनी कोर्स है ये। अगर मिनी कोर्स करने के बाद आप कुछ और सोचे तो सही है, मिनी कोर्स तक आप फ्री में ज्वाइन करके सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द हाजिर होते हैं आपके सामने फिर। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय राम कृष्ण।